Let's begin. Can you read? Two circles with radii 25 and 9 centimeter touch each other externally. Find the length of the direct common tangent. Now this is something new. Direct common tangent. Let me show you exactly what is a direct common tangent. ओके सो ये दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. Direct common tangent is a tangent which is common to both the circles and on the same side of both the circles. That means the tangent will be like this. And we can name it as PQ. This is a direct common tangent. There is one more tangent of the same league which is known as transverse common tangent. Transverse common tangent is a common tangent to two circles, but the circles are on the either side of the tangent. एक सर्कल ऊपर होगा, एक नीचे होगा, टेंजेंट बीच में होगा. यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन है, दैट इज टेंजेंट सर्कल के एक ही साइड पे या सर्कल टेंजेंट्स के एक ही साइड पे, और ऊपर से ये जो दोनों सर्कल है ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली. जरूरी नहीं है टच करे, टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं. टेंजेंट की पोजीशन से हमने ये नाम दिया है इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. रिमेंबर दैट. So what is the radii of these two circles? 25 and 9 centimeter. We have to find the length of PQ. Okay. So what I'm going to do is I'm going to first mark the centers, and I'm going to join the centers. Now we know one thing. Line joining the centers of two circles which touch each other passes through the point of contact. Line joining the centers of two circles which touch each other passes through the point of contact. ये प्रूव किया हुआ है हमने. ठीक है. इफ यू रिमेंबर कैसे प्रूव किया, बहुत इजी था वो. हमें क्या ढूंढना है? PQ की लेंथ ढूंढनी है. हमें पता है कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है. सो इसको हम लोग ले सकते हैं O, इसको हम लोग ले सकते हैं R. तो O, अच्छा ये पॉइंट को भी हम लोग ले सकते हैं S. OS 25, RS 9, OR कितना होगा? 34. करेक्ट. हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? PQ की लेंथ ढूंढनी है. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. सो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग. ड्रॉ OP एंड RQ. OP और RQ को ड्रॉ करेंगे हम लोग. सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. OP, RQ. Now OP will be perpendicular to PQ, and RQ will also be perpendicular to PQ. Can you tell me the reason? Radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. That means this angle will be 90. Similarly, this will also be 90. ये यहाँ पे रीजन इसका तुम लिखोगे. ठीक है. इसके बाद हमें और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ये तो एक कंस्ट्रक्शन हमने किया एंड वी नो अबाउट इट. वी हैव टू फाइंड PQ. कैनॉट फाइंड PQ so easily. ठीक है. So we'll do one more construction.
We can draw a line like this, which is cutting here at point, let's say A. How have we drawn this line? So what we have done is we have constructed RA parallel to QP. हमने एक पैरेलल लाइन बनाई PQ, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाई हमने. अच्छा, सी वी ऑलरेडी नो दैट ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है. वी ऑलरेडी नो दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, वी हैव डन इट बाय कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर वी कैन से दैट PA is parallel to QR. Do we know this? Yeah, because co-interior angles are supplementary. है ना? Co-interior angle supplementary, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो हमने ही कंस्ट्रक्ट किया. Therefore, PQRA becomes a parallelogram. Is a parallelogram. Why? Because both the pairs of opposite sides are parallel. PQ parallel to AR by construction and AP parallel to QR, co-interior angle supplementary. अगर ये पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल्स है, मतलब ये रेक्टेंगल है. ओके, बट PQRA is a rectangle, that is a special kind of parallelogram, since angle P is equal to angle Q is equal to 90. यहाँ पे रीजन लिखना है, since both the pairs of opposite sides are parallel. तो अभी इसको मैंने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया. अब थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि QR कितना होगा. 9. QR is equal to 9 सेंटीमीटर. रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर R, तो ये 9 हो गया. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट PA is equal to QR is equal to 9 सेंटीमीटर. व्हाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. PQR है तो रेक्टेंगल है, तो QR और PA इक्वल होना चाहिए. मतलब ये कितना है? ये 9 है. अच्छा, PO कितना होता है? PA प्लस AO. PO कितना है? 25 रेडियाई ऑफ दैट बिगर सर्कल, और PA है 9, तो AO मिल जाएगा हमें. AO कितना हो जाएगा? 25 minus 9, which is 16. So I've got AO, which is 16. I have OR, which is 34. So I can find AR by Pythagoras theorem. Now you will say, how Pythagoras theorem? So let me remind you that PQRA is a rectangle. If it is a rectangle, then that means this angle is 90 degree. If this angle is 90 degree, this has to be 90 degree. Linear pair. So angle OAR is 90 degree. ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो. Angle OAR plus angle PAR is equal to 180. ठीक है, so angle OAR plus 90, which is PAR, is equal to 180. Therefore angle OAR is equal to 90 degree. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर आएगा. सॉल्व करो, AR मिल जाएगा. AR इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा. राइट द होल थिंग प्रॉपरली एज पर माई इंस्ट्रक्शंस. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंट्रोड्यूस किया मैंने.
Hi Neelam, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. And can you see the screen? Yes, sir. Okay, great.
Done. So I'll move to the next question. Now you can, those who are writing, they can write. Here in this question, they have given that centers of two circles with radii 6 and 2 centimeter are 10 centimeter apart. Clearly, the circles are not touching. Because अगर radii 6 और 2 है, तो और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो दैट मीन्स देयर इज अ 2 centimeter गैप बिटवीन देयर circumference. That means they are not touching. ठीक है. Calculate the length of transverse common tangent. So that's what I was talking about. Transverse common tangent. This is the situation. Transverse common tangent. ठीक है. यहाँ पे this is the center here, this is the center here. This is the transverse common tangent PQ जिसकी लेंथ हमें ढूंढनी है. And we have been given certain information regarding the radii and the distance between the centers. So so this will be O, this will be R, and we can say that this is A, this is B. OA, that is radius of bigger circle. OA, which is the radius of bigger circle, it is 6 centimeter, and ORB, radius of smaller circle, is 2 centimeter. 6, 2. And the distance between the centers is 10. So that is OR. I'm not writing it here. Okay, construction mein we have to join OP and RQ. And you know how to write this. It's perpendicular, radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. अब हमें ढूंढना है PQ. We have to find PQ. So construction कैसे होगा? One thing what we can do here is
don't do this, but let me just show you first. इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, नॉट स्ट्रेट. And then we can draw from O, we can draw a line parallel to PQ. So what I've done is I've extended this line RQ as it is ahead. So if I've extended this line and this is a straight line, ये angle कितना होगा? Linear pair, ठीक है? So and I've drawn PQ parallel to this. अच्छा, here I can give the name as S. Yeah, S is that point. Okay, I can give this name S. So these two lines are parallel, na? And I have extended this line further. So अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों तो ऑलरेडी 90 है, इसका मतलब है ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी, since co-interior angles are supplementary. So this will be a rectangle with all its interior angle as 90 degree. PQSO or POSQ is a rectangle. Agree with that? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, क्लियर है अभी? Now what? Now we know that OR is how much? 10 centimeter. RQ is how much? PO is how much? 6 centimeter. PO is 6 centimeter. And QS will be how much? 6. QS will also be 6, opposite sides of rectangle. So RS will be how much? 6 plus 2, 8 centimeter. So can we find by Pythagoras theorem OS in triangle ORS? Triangle ORS, which is a right angle triangle. We can find OS and OS is equal to PQ. So we can find PQ. सेम है, वही लाइन पे है जो पहले वाला क्वेश्चन था ना. सो यू हैव टू राइट सिमिलर स्टेप्स, स्टेटमेंट्स एंड प्रूव इट. रिमेंबर मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, कैसे ड्रॉ किया, क्या लिखा. देयर मे बी यू कैन एक्सटेंड. या आई वॉज नॉट श्योर, सो आई डिड इट इम्प्रॉम्प्टू. लाइक मेरे को जो दिमाग में आया आई डिड इट एंड इट केम. हाँ, यू कैन एक्सटेंड हियर ऑल्सो ऊपर एंड देन जॉइन इट हियर, फिर भी हो सकता है, पॉसिबल. ORS, यस. यही करो जो अपने अभी हो गया है, तो यही वाला करो.
Yep. OS. We just extended RQ ahead and we made OS parallel to PQ to meet RQ extended at S. $256. 216. 260 तो रूट में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा, चलेगा. विल चेक इट आउट, अगर कुछ है तो देख लेंगे. तो तेरी गलती है. 6 आ रहा है, मतलब तेरे को OS 36 आ रहा है, OS स्क्वायर. OR कितना लिया तूने? OR 10 है, ऊपर लिखा है मैंने. अच्छा ठीक है, 6 है. 6 इज द करेक्ट आंसर. पहले का 30 आ रहा था ना. आई डिडंट चेक दिस. तुम लोग को आया था ये? क्यों? क्या बात कर रही है? इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. OAR लेना था, ट्राइंगल. 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर करना था. स्क्वेयरिंग में गलती हुई, मल्टीप्लिकेशन में शायद. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इसी पार्ट का एक बार चेक कर लेते हैं. हम्म 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फिर थियरम से कुछ. यस, कूल. वाह, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. In the figure given alongside, PQ is equal to QR.
PQ is equal to QR. Angle RQP is 68 as given here. And PC and QC are tangents to the circle at O. Calculate the value of angle QOP. QOP and QCP. QCP. QOP, QCP. मतलब ये दोनों एंगल ढूंढने हैं अपने को, और जो दिया है यहाँ पे दिया है, हो जाएगा, इजी तो लग रहा है मुझे। अच्छा, ट्रायंगल देख लो, बाद में लिख लो आराम से। ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है तुमको? पी क्यू आर दिख रहा है? अच्छा, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू है गिवन। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। ओके, इट्स नॉट विजिबल ना इन लाइक दिस। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इसको हम लोग x ले लेते हैं क्योंकि हमको दोनों नहीं पता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 68 विल बी 180 डिग्री, राइट? सो 2x इज इक्वल टू 180 minus 68. So 2x will be how much? 112. So x will be how much? 56. So मतलब we got this angle. How much it is? Also this is 56. ठीक है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, बट या वी कैन फाइंड आउट एनी हाउ। अच्छा, if this is 56, then remember one theorem from chapter circles. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. मतलब अगर आर्क PQ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 56 डिग्री का एंगल बना रहा है PRQ, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 56 टाइम्स 2, दैट इज 112। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी और भी इजी है। एंगल OPC कितना है? OPC, the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. PC tangent है, PC and QC are tangents। ठीक है, सो सिमिलरली ये भी 90 होगा। होगा कि नहीं? कौन सा? एंगल OQC। तो इन क्वाड्रिलैटरल OPCQ, कैन यू सी क्वाड्रिलैटरल OPCQ? OPCQ, in quadrilateral OPCQ, angle O plus P plus C plus Q is 360. We know O, we know P, we know Q, we can find C by angle sum property. So सबसे पहले ये X ढूंढो, फिर central angle by that theorem from the previous chapter, and then angle sum property and C. Come on, do it. इससे और एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, बट फर्स्ट राइट दिस, देन आई विल टेल यू।
QCP. You have to consider quadrilateral POQC and apply angle sum property. Did you find QOP? That is by the theorem of that circles. Then apply angle sum property. But before that, you need to mention that angle P and Q are 90. The radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. And then apply angle sum property in OPCQ. Done? Let's go ahead. Okay, so now what we are going to do is, before we go to the next question, you need to know the theorems of the next part. That is some very important theorems over here. Let me just, yeah, now it's visible. So please pay extra attention here, क्योंकि सारी important theorem अब शुरू हो रही है चैप्टर में. अब तक तो फर्स्ट पार्ट में तो बहुत हल्की फुल्की इजी वाली theorems थी, जैसे कि वो tangent is perpendicular to radius, two tangents drawn from an external point are equal in length, subtend equal angle at the center, are equally inclined to the line joining the external point and the center. And there was this the circles would touch each other externally or internally, the line joining their centers, the point of contact lies on the line joining their centers. And there was this direct common tangent, transverse common tangent, ये सब चीजें हमने किया. But then there are more theorems. Now these theorems are about intersection of chords. The first theorem of second part is, if two chords of a circle intersect internally or externally, then the product of the lengths of their segments is equal. Theorem याद रखना, if two chords of a circle intersect internally or externally. How do two chords intersect externally? ये तो इंटरनली है, दो कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है, एक्सटर्नली ऐसे करेगी इंटरसेक्ट. ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, उसको एक्सटेंड करेंगे तब जाके बाहर इंटरसेक्ट करेगी. लेकिन दोनों केसेस में एक चीज ट्रू है, दैट इज देयर द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल. दैट मीन्स what segment are we talking about over here? Here we are talking about AP and BP. These are the two segments, and we are talking about CP and PD. These are two more segments. So you have to prove that PA times PB, PA and PB का product is equal to PC times PD, PC और PD का product. The product of the length of their segments is equal. ये हमें prove करना है. अब ये prove करने के लिए you need to do a small construction. You need to join AC and BD. So you get two triangles. इनिशियली ट्राइंगल नहीं थे, सिर्फ दो कॉर्ड्स थे. हमने वो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो हमें क्या मिल गए? ट्राइंगल्स मिल गए. अब बहुत इजी है ये प्रूव करना, लेकिन ये तभी बताऊंगा जब तुम इतना लिख लोगे. थियरम लिखो, स्टेटमेंट, केस 1 लिखना, डायग्राम बनाना, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. देन आई विल टेल यू हाउ.
डन। ठीक है। सो ये जो प्रूफ है ना, इसमें यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, नॉट कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी चैप्टर हमने अभी तक किया नहीं, बट आई कैन गिव यू सम फ्यू स्मॉल हिंट्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है टू ट्राइंगल्स और टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर exactly equal to each other, equal in all aspects, their shapes, their sizes, everything is same, तब congruent होते हैं, congruent। similarity में ऐसा नहीं है। similarity में two shapes can be similar if their sides, their corresponding parts are proportional, that means they have same shape, they can be of different sizes। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, APC and DPB, they are of different sizes, so they cannot be congruent, क्योंकि congruency में तो साइज भी सेम होती है, शेप भी सेम होता है। सिमिलैरिटी में शेप सेम होना चाहिए जो है, बट साइज अलग हो सकती है, दैट इज सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन होगा। सो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए भी कुछ टेस्ट होती है, और सबसे कॉमन टेस्ट है AA टेस्ट। AA मीन्स एंगल टेस्ट, AA टेस्ट। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन तुमने कर दिया, तुम्हारे पास दो ट्राइंगल भी है। नाउ यू विल सिलेक्ट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, सो दैट इज इन ट्राइंगल APC and triangle DPB. Now this thing you will remember from the previous chapter, circles. Angle PAC, ठीक है, is equal to angle PDB. PAC PDB equal है। Can anybody tell me why? ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? एंड पॉइंट्स है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेगमेंट मतलब अगर मैं CB को ज्वाइन करूं तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। वही सेगमेंट के एंड पॉइंट से दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली एंगल ACP is equal to angle DBP। ACP और DBP भी इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कौन से सेगमेंट में है ये? AD। ठीक है, so we have got two angles in both the triangles which are equal, angles in the same segment. Therefore we can say that triangle APC is similar to triangle DPB। ये सिमिलैरिटी की साइन है, इसमें नीचे इज इक्वल टू नहीं होता है। वो इज इक्वल टू का मतलब ही इक्वालिटी है। सिमिलैरिटी में देयर इज नो इक्वालिटी, देयर इज जस्ट सेम शेप, साइज इज नॉट सेम, साइज इज नॉट इक्वल, इसलिए सिर्फ वो एक वो कर्व होता है, इन्वर्टेड S, स्लैंट S, व्हाटएवर यू कॉल। ठीक है, सो दिस इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी तो हो गई प्रूव। अब बोला जाता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना सबने। मतलब अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये 4 है, तो फिर अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 6 होगा, और अगर ये 4 होगा तो ये 8 होगा। मतलब रेशियो अगर देखो तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो 1:2 आता है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जब प्रोपोर्शनल होगी तभी तो सिमिलर होंगे, वो सेम शेप।
तो सेम शेप होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक करस्पॉन्डेंस। क्लास 9th में करस्पॉन्डेंस हमने बहुत अच्छे से किया है, कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ा है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, CPCTC याद है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पे क्या होता है, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो मुझे बताओ, क्या A D से करस्पॉन्डिंग है कि नहीं? बिल्कुल है। P से करस्पॉन्डिंग है और C B से करस्पॉन्डिंग है। देखो, A इज करस्पॉन्डिंग विथ D, P इज करस्पॉन्डिंग विथ P एंड C इज करस्पॉन्डिंग विथ B। है करस्पॉन्डेंस, मतलब मैंने जो नाम लिखा है वो करस्पॉन्डेंस को मैच करता है। यू हैव टू मेक श्योर विदाउट बिफोर गोइंग अहेड। सिमिलैरिटी में भी ये इश्यू होगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंस से नाम लिख दिया। अब क्या लिखना है? नाउ आई हैव टू मेंशन, देखो मुझे ये प्रूव करना था। ठीक है, PA PB PC PD, कैन आई राइट AP अपॉन DP? देखो AP क्या है यहां पे, DP क्या है यहां पे, इज इक्वल टू PC अपॉन PB, है ना? ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल होगा ना, और ये लिखने के बाद मैं क्या रीजन दूंगा? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। हम लोग याद है CPCTC कैसे यूज करते थे? पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, और फिर हम लोग लिखते थे कोई पार्ट को इक्वल लिख के कि CPCTC। वाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या लिखना है? पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। अच्छा, सिमिलैरिटी कौन से टेस्ट से प्रूव की हमने, ये भी तो लिखना पड़ेगा। So we have to write the name of the test also. The test here which is most commonly used is AA test of similarity. AA test. ठीक है, बाद में CPST लिखा। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू DP। हो गया प्रूव। वही है ना जो प्रूव करना है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। मैंने DP लिखा है और AP लिखा है, जो उल्टा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इश्यू। सो ये वाली जो दो साइड्स है इनका प्रोडक्ट, ये बाकी वाली जो दो साइड्स है उनके प्रोडक्ट से इक्वल होगा। ये हमारी थियरम। ठीक है, इतना ही है प्रूफ। हो गया, प्रूफ तो हो गया। ये लिख लो, इसको लिखा है, लिख लिया। समझ में आया कैसे किया? सिमिलैरिटी का यूज किया हमने यहाँ। हाँ, बट ये जस्ट केस 1 था। द थियरम कंटिन्यूज इन केस 2 एंड दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट केस। दिस इज केस 2। The case 2 says that chords intersect externally. अगर chord externally भी intersect करती है, then the product of their segments are equal. That means PA into PB. But here the meaning of PA and PB changes. What is PA? PA is यहाँ से यहाँ तक, PA into PB. PB is just this much. PA into PB is equal to PC into PD. ये PC है and this is PD. You see, PA into PB is equal to PC into PD. हो सकता है, ये भी प्रूव हो सकता है। लास्ट क्लास की तो, मतलब लास्ट चैप्टर की तो बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना है? AC और BD को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, AC और BD दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे एक BD भी है, वेरी स्मॉल। दैट्स अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। I can zoom in if you want.
नाउ इफ यू कैन सी BD, कैन यू सी BD? ठीक है, सो अब क्या है देखो, ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम लास्ट चैप्टर. यू रिमेंबर व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसके सारे वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफरेंस पे होते हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी थ्योरम में, दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला B, that is DBP, which will be equal to angle C, and ये exterior angle है BDP, which will be equal to the opposite interior angle A. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं इसमें, विच ट्राइंगल्स डू वी हैव टू टेक? पहले इतना लिख लोगे क्या? प्लीज डू दैट एंड देन आई टेल यू. ठीक है, सो इसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल. So you have to consider triangle APC, bigger triangle APC, and triangle DPB. अब मैंने जानबूझ के BPD नहीं लिखा है, DPB लिखा है, क्योंकि A किससे इक्वल है? D से, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो A का करस्पॉन्डेंस D के साथ है, PP की जगह पे ही है DPB, और C का करस्पॉन्डेंस B के साथ आ गया. ठीक है, तो क्या क्या इक्वल है? एंगल APC is equal to angle DPB. You agree? DPB. Why? APC DPB इक्वल है, क्यों? कॉमन, कॉमन है. और वो लोग ने दूसरा एंगल, वो एंगल एक्सटीरियर एंगल वाला लिया है, एंड दैट्स ओके. एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल BDP. ये तुम्हारा ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल.
ठीक है, ये वाला थियरम से आएगा, ये आएगा कॉमन. सो देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A से करस्पॉन्डिंग D, P से करस्पॉन्डिंग P और C से करस्पॉन्डिंग B by AA similarity, and therefore you can say that AP upon DP is equal to PC upon PB, and then you cross multiply, so AP times PB is equal to, अच्छा यहाँ पे लिखोगे CPST, and then AP times PB is equal to DP times PC. हो गया प्रूफ. इजी था ये सिर्फ फर्स्ट थियरम थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, फाइंड एक्स वाले क्वेश्चन आते हैं. दैट इज कॉर्ड्स के सेगमेंट में से कुछ मेजरमेंट दिया है, कुछ मिसिंग है, यू टू फाइंड इट यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो यू टू रिमेंबर सेगमेंट मतलब कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक्सटर्नली, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट, पुट इट इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. सो दे आर सिंपल बट इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर से कुछ कट नहीं हुआ है ना? नथिंग इज सेट टू यू और समथिंग लाइक, नहीं होना भी चाहिए बिकॉज it's a good chapter, scoring chapter, important chapter. इससे पहले वाली थियरम कौन सी थी वो? टचिंग, हाँ 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 हाँ, अच्छा वो नहीं है, वो तो बहुत अच्छी थियरम है यार. और कुछ नहीं, बाकी सब है. प्रूविंग एक भी नहीं है. But we'll do it because we have been doing it and there is no issue. And this is this is like drop the mic question theorem hai. This is known as angles in the alternate segment theorem. Angles in the alternate segment. Please write the whole thing. Whatever you see here, you must write it. ठीक है? Theorem है the angle between tangent and a chord through the point of contact is equal to the angle in the alternate segment. और जो इसका proof है, mind blowing proof. बहुत मजा आएगा तुमको, बताता हूँ. पहले ये सब कुछ लिखो एज इट इज, डायग्राम बनाओ बहुत क्लियर और नीट बनाना एकदम.
डायग्राम बना है? सो डायग्राम में ध्यान से अगर तुम देखोगे, एक सर्कल, एक टेंजेंट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ए पे एक कॉर्ड है, दैट इज कॉर्ड ए बी। ए बी, what we are talking about is chord AB at the point of contact. ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is equal to the angle in the alternate segment. That means एंगल बिटवीन AB and PQ, AB और PQ के बीच में क्या एंगल है? एंगल BAQ या फिर एंगल PAB, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल BAQ इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा, नाउ विच इज द कॉर्ड वी कंसिडर्ड? AB. Which chord we considered? AB. AB is dividing this circle in two segments. You see that one is upper segment and one is the bottom segment. BAQ is the angle made in the bottom segment, that is BDA. You see, BAQ is the angle made in the bottom segment. BAQ, that is angle made between the chord AB and the tangent PQ. ठीक है, so BAQ is made in the bottom segment. It should be equal to the angle in the alternate segment. Alternate segment means the other segment. Other segment is BCA. तो BCA पे कोई BCA जो एंगल दिख रहा है वो एक सेगमेंट भी है, तो वो BCA में एक एंगल दिख रहा है क्या तुमको? BCA, ये एंगल C. So that is BAQ should be equal to angle C according to the theorem. Angle C. And BAP, do you see BAP? That is made in the bigger major segment. So that should be equal to the angle made in the alternate, that is minor segment, that is BDA or angle D. BDA. So BAP should be equal to angle D and BAQ should be equal to angle C. ये हमें प्रूव करना है. Angle made between a tangent and a chord through the point of contact is equal to the angle in the alternate segment. So to prove में मैंने जो बताया वो प्रूव करना है. इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन हमने बनाया एक डायमीटर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थ्रू AOR हमने बनाया है डायमीटर, सेंटर से पास होता हुआ, और R और B को ज्वाइन किया है, RB. ठीक है, करे इतना लिख लिया सबने, अभी प्रूव कर सकते हैं. इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं पहले. Now we'll just keep this figure over here and prove. सबसे पहले एंगल RAQ is equal to 90 degree. Do you agree? RAQ 90 डिग्री है. क्यों? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. राइट द रीजन. लिखो, मेरे साथ साथ लिखो ताकि बाद में लिखने का टाइम ना मिले. ठीक है, एंगल RAQ इज 90 डिग्री. रेडियस through the point of contact is perpendicular
to the tangent. लिखा इतना RAQ90। अच्छा, ध्यान से देखना और मुझे बताना, ये RAQ एंगल है, इसके अंदर भी कुछ एंगल्स छुपे हुए हैं, तो मुझे वो दो एंगल बताओ। RAB, ओके, एंगल RAB प्लस RAD तो नहीं होंगे, मतलब आई वॉन्ट RAQ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ टू एंगल्स। BAD एनीथिंग बेटर? BAQ, क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विथ BAQ, we are concerned with BAQ. So RAB plus BAQ को अगर मैं 90 लिखता हूं, कुछ गलत है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने RAQ को ही तो स्प्लिट करके RAB plus BAQ बनाया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यू एग्री विद दिस? यहां तक तुम्हें कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि तो शुरुआत हुई, डाउट कहां से है? डाउट आएगा ही नहीं। देखो, ये इसको मैं बनाता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, ठीक है? मैं ऐसे नहीं तारीफ कर रहा हूं इस थ्योरम की, दिस इज लाइक माइंड बेंडिंग थ्योरम। अगर इसको प्रूफ देखा ना तो कुछ नहीं समझ में आता है, बट टेक्निक समझ में आया ना तो फिर तुम कभी भूलोगे नहीं इसको। अब देखो, नेक्स्ट देखो, एंगल RBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, लास्ट चैप्टर में सिखाया था मैंने। व्हाई इज एंगल RBA 90 डिग्री? एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। लिखो रीजन के साथ, एंगल सबटेंडेड in a semicircle is a right angle. ये लास्ट चैप्टर की थ्योरम। गुड दैट यू गाइज रिमेंबर लास्ट चैप्टर की थ्योरम। अच्छा, therefore in triangle RBA, in triangle RBA, angle RBA plus angle BAR, नहीं BAR नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको हमने पहले क्या नाम दिया था? RAB। यस, RAB प्लस एंगल ARB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल RBA प्लस एंगल RAB प्लस एंगल ARB इज 180। एग्री और नॉट? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? अच्छा, RBA तो 90 है, RBA 90 है, तो RBA की जगह 90 लिखूं, प्लस एंगल RAB प्लस एंगल ARB is equal to 180, and therefore angle RAB plus angle ARB is equal to 90। 180 minus 90 डायरेक्ट लिखता हूं, 90। एग्री और नॉट? इसको इक्वेशन 2 बना देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 दिख रहा है तुमको? अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करूंगा, एंगल RAB प्लस एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल RAB प्लस एंगल ARB, है ना? 1 एंड 2 को इक्वेट किया तो दोनों साइड से क्या कट जाएगा? RAB कट जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट? एंगल BAQ is equal to angle ARB. Now can you tell me what is angle BAQ? Angle BAQ
is the angle made at the point of contact between the chord and the tangent. chord कौन सा है? AB. और टेंजेंट कौन सा है? PQ. और उन दोनों के बीच में क्या एंगल हम ले रहे थे? BAQ. तो ये BAQ किससे इक्वल निकला? ARB से. किससे इक्वल निकला? लेकिन बट एंगल ARB is equal to angle ACB. Why? ARB और ACB इक्वल है, क्यों? ARB angles in the same segment. Previous chapter. Angles in the same segment. यहाँ पे लिख लेना. So therefore we can say that angle BAQ is equal to angle ACB. Proved. हो गया प्रूव? यही प्रूव करना था अपने को. दूसरा वाला भी प्रूफ है इसका, मतलब सेकंड वाला. ये तो मैंने ये साइड वाला किया कि BAQ और BAQ और ACB इक्वल है. समझ में आया क्या ये टेक्निक? कैसे मैंने लेके गया उसको. पहले मैंने उसको वो RAQ को 90 लिया, फिर उसको स्प्लिट किया, फिर RBA को 90 लिया, फिर उसको मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से स्प्लिट किया, फिर सिंप्लीफाई किया करते करते करते. BAQ इज इक्वल टू BCA. लेकिन हमें और एक चीज प्रूव करनी है. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BAP इज इक्वल टू BDA. दिख रहा है? BAP इज इक्वल टू BD. एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वो भी तो है, क्योंकि वो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो दूसरा वाला एंगल है वो भी ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल से इक्वल होना चाहिए, और है. प्रूव कर सकता हूं मैं. सो डायग्राम तो हमारे पास है ना. देन I will just go ahead. What happened? I'll just go ahead and I'll say that angle BAQ plus angle BAP is equal to 180. Can you tell me the reason? BAQ plus BAP. Linear pair. Very good. Okay. And I can say that angle ACB plus angle ADB is equal to 180 degree. Can you tell me the reason? Is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Last chapter. ठीक है? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Okay. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि we can equate both of them. Angle BAQ plus angle BAP is equal to angle ACB plus angle ADB. लेकिन BAQ और ACB तो इक्वल है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, है ना? तो वो कट जाएगा दोनों साइड से. रिमेंबर, we have proved it already. Therefore angle BAP is equal to angle ADB. ये दूसरा चीज भी प्रूव हो गया. समझ में आया? था ना इंटरेस्टिंग ये वाला? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रूविंग के लिए, नहीं अगर नहीं बोला है तो नहीं आएंगे, शायद आएंगे तो आ भी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होते हैं. दे विल टेल यू टू फाइंड एक्स मिसिंग एंगल. बहुत क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है? सो ये पूरा इसका प्रूफ है. Oh my god, that's one. There is one more.
and then there is solved example. ठीक है, तो I think you should call your father, है ना, ये लास्ट थ्योरम करके आज कंक्लूड करें. प्लीज ये लिख लो थ्योरम नंबर जो भी है 14 तो देर स्टेटमेंट डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. इजी ऑल दैट. Cool. This is more convenient rather than your father. तो अच्छा नहीं लगता. स्कूल में वो लोग ऐसे थ्योरम करवाते थे सारी एक एक करके. व्हाट दे यूज्ड टू सीधा न्यूमेरिकल्स. ये थ्योरम है, इसको देखो और एनलाइटन हो. अब हम करेंगे जब तक तुम थ्योरम से मतलब दोस्ती नहीं करते, you don't fall in love with the theorem, you cannot solve numericals. इसका कोई मीनिंग नहीं. You need to like get into the theorem to solve the numericals effortlessly. ज्योमेट्री का तो यही है हिसाब. उनका ना फंडामेंटल्स ही करो. जो टीचिंग का जो होता है ना फंडामेंटल्स, जो एक क्या बोलते हैं एक एथिक्स बोलते हैं, वर्क एथिक्स, वही गलत है. वहीं पे गलती हो गई और उसको कोई सुधारने वाला नहीं है. मुझे ये इतना बुरा लगता है ना कि इनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि साले तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि बच्चों को बोलते हो ये थ्योरम है अब चलो सॉल्व करते हैं. थ्योरम सिखाएगा कौन? तुम नहीं सिखाओगे तो. उनको जल्दी पढ़िए, बस एग्जाम ले लो, खत्म करो, निकलो यहाँ से यार. जस्ट गेट आउट ऑफ माई स्कूल मैन. जस्ट पे मी फीस एंड मेक मी रिच. Idiots. टीचर को लगता है पे मी सैलरी, मेक सेट मी फ्री. रॉन्ग. लिखा है ये. यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू माइट गेट लॉस्ट इन दिस थियरम एंड द 12th थियरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला तो बहुत अच्छा था क्योंकि वहां पे एक कॉर्ड और एक टेंजेंट
एंगल बना रहे थे। यहाँ पे कॉर्ड अलग है, टेंजेंट अलग है। कॉर्ड कौन सी है पता है यहाँ पे? ए बी। और टेंजेंट कौन सा है? टी पी। कॉर्ड और टेंजेंट का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है, ये अलग है। लेकिन जब वो कॉर्ड को एक्सटेंड करोगे वो पॉइंट पी पे जाके इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट को। तो इस केस में कॉर्ड ए बी और टेंजेंट टीपी के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट पी है, वो भी जब कॉर्ड को एक्सटेंड किया तब बना। और इस केस में इफ यू रिमेंबर द 12th थ्योरम, वहां पे क्या था? दो कॉर्ड थी, टेंजेंट था ही नहीं। वो दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही थी और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उनके जो सेगमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट इक्वल था। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और ये एक्सटर्नली ही इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरनली इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के अंदर आ ही नहीं सकता, वो तो बाहर ही रहता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट from the point of intersection to the point of contact, the square of the length of the tangent, that is TP square, is equal to the product of the segments of the chord. अब segment of the chord जब भी हम लेते हैं और chord आधी अंदर है आधी बाहर है, तो हमें क्या लेना है? पूरा लेंथ PA टाइम्स जो बाहर है वो लेंथ PB, PA PB, PA टाइम्स PB is equal to square of the length of the tangent PT square. PA PB is equal to PT square. हमें ये प्रूव करना है। सो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ सिमिलैरिटी में। उस टेक्निक का मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई विल गिव यू वन ग्लिम्स। तो ये टेक्निक है बैकडोर मेथड, इसको बैकडोर मेथड बोलते हैं सिमिलैरिटी में। इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैं बैकडोर मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये रफ है, ये दिस इज नॉट द प्रूफ, सो डोंट राइट इट इन द प्रूफ। बैकडोर मेथड में पहले रफ में काम करना पड़ता है, फिर तुम्हें आंसर आ जाता है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के प्रूफ हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो कैसे करना है देखो, ये मुझे प्रूव करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ओके, एंड आई हैव द फिगर विथ मी, बट आई डोंट नो कि कौन से ट्राइंगल को लेना है, विच ट्राइंगल डू आई हैव टू टेक, विच ट्राइंगल डू आई हैव टू प्रूव सिमिलर, ये सब मुझे नहीं पता। तो बैकडोर मेथड से तुम्हें पता चल जाएगा। सो व्हाट डू वी डू? फर्स्ट वी राइट व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना है। देन वी सिंप्लीफाई इट, हाउ? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी। पी टी स्क्वायर को पी टी इंटू पी टी लिख सकते हैं ना। देन वी ब्रिंग these products in the form of a ratio. That means we write it like PA by PT is equal to PT by PB. Now we look at all the letters in the numerator of both the ratio. Which letters do you see here in the numerator? You see P, you see A, and you see again P and again and T. So there is, how many letters do you see? P, A and T. And there is P repeating, you don't write it twice, you just write it once, and all the other letters. Now there are three letters and triangle का नाम three letter वाला ही होता है. तो look in the figure, do you see a triangle named PAT? Yes, you see a triangle. That means one of our triangle will be PAT. क्या कर रहा हूं मैं, तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से मैं ट्राइंगल के नाम निकाल रहा हूं जिसको मुझे सिमिलर करना पड़ेगा। ये है बैकडोर मेथड। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर देखो, ये तो न्यूमरेटर वाला हो गया, डिनोमिनेटर को देखो, पीटीबी ट्राइंगल है बिल्कुल, हो गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे, इनको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, इनको सिमिलर प्रूव करना है, फिर ये लिखना है CPST, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, हो गया प्रूव। सिमिलर कैसे प्रूव करना है ये सोचो। सिमिलैरिटी मैंने तुम्हें बताई थी, ए सिमिलैरिटी, सिर्फ दो एंगल चाहिए दो ट्राइंगल में, एक तो मिल गया ऑलरेडी, मैं वहां लिख रहा हूं एक तो मिल गया ऑलरेडी, एक मिल गया ये वाला एंगल कॉमन। PTB और PTA दोनों में एंगल P है,
है ना कॉमन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल एंगल टी पी ए इज इक्वल टू एंगल टी पी बी। सही है ना, कॉमन। और एक एंगल चाहिए, चलो कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? ऑनलाइन कोई बता सकता है? ऑनलाइन है क्या कोई, या सब न्यू ईयर्स ईव मना रहे? हाँ, नहीं? Sir, I am there. या ना, टेल ना, कौन है? Who's there? नीलम, नीलम, प्लीज टेल मी, नीलम। Sir, can angle T be common? नो, नो, बिकॉज छोटे ट्रायंगल पीटीबी में ऐसा आधा एंगल टी है, और बड़े ट्रायंगल पीटीए में पूरा एंगल टी है, तो वो कॉमन तो हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन इफ यू कंसिडर angle made between a chord BT and tangent PT, it will be equal to the angle in the alternate segment. Previous theorem. Angle in the alternate segment दिख रहा है? देखना, आईज है, देखने का तुम्हें मतलब विजुअलाइजेशन करने का आर्ट बनाना पड़ेगा। आईज तो सबके पास दिखता नहीं है। देखो देखो, ये एंगल बता रहा हूं मैं, ये किसके बीच में एंगल है? ये कॉर्ड दिख रही है बीटी, और ये टेंजेंट दिख रहा है पीटी। कॉर्ड और टेंजेंट का बीच का एंगल, ये सेगमेंट नहीं, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है उससे इक्वल होगा। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गया। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी ए टी इज इक्वल टू एंगल पी टी बी, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, और उसके लिए ट्रायंगल, अब मुझे ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत ही शांति से लिखना है, बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ किया, करस्पॉन्डेंस फॉलो नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ऑल्दो एग्जाम में कोई प्रूफ आते नहीं है, मतलब ऐसे थियरम्स आते हैं कभी कभी, लेकिन इस बार तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। बट स्टिल इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू दैट while you write the name of the triangle in similarity also, you have to make sure that you don't lose correspondence। ठीक है, सो यहाँ पे पहला ट्राइंगल है PAT, मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, PAT इज सिमिलर टू ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल PTB है। मुझे तुम्हें बताना है करस्पॉन्डेंस। P से करस्पॉन्डिंग क्या है? P, एब्सोल्युटली। A से करस्पॉन्डिंग क्या है? T। बड़े ट्राइंगल में A से करस्पॉन्डिंग छोटे ट्राइंगल का T, और बचता क्या है? बाय AA सिमिलैरिटी। लिखना कैसे है? सबसे पहले ट्राइंगल के नाम लिखो, सिमिलैरिटी प्रूव कर दो, फिर ये लिखो CPST, फिर ये लिखो, ये लिखो, खत्म। बैकडोर मेथड नहीं किया होता तो तुम सोचते ही रहते कि करेंगे क्या। ये बैकडोर वाला मेथड हम लोग सिमिलैरिटी में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इसके, तब तुम्हें मतलब यू विल बिकम क्वाइट यूज टू इट। कैसा लगा?
मस्त है ना थियरम्स इस पार्ट के, इंटरेस्टिंग है बहुत। बट इसके लिए सर्कल्स मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। देखो क्लास 9th में शुरुआत हुई थी सर्कल्स की, उसमें दे टॉट यू दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ chord bisects it, and a line drawn from the center to bisect a chord is perpendicular to it। दोनों एक दूसरे का ये था, कन्वर्स था। और भी ऐसे थियरम्स थे, सेंटर आर इक्वल इन लेंथ एंड इक्वल chords आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यस उसका ऑपोजिट। तो ऐसे बहुत सारे थियरम्स थे उसमें। फिर 10th में उसका कंटिन्यूएशन ही था, वो शुरुआत हुई उससे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। फिर आया वो तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary and exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle। और फिर ये वाला है, इसमें सिर्फ टेंजेंट और सीकेंट के ऊपर वो लोग ने पूरा खेला है। बट द क्वेश्चंस कैन बी इंटर रिलेटेड बिटवीन बोथ द चैप्टर्स एंड दे कैन बी रियली इंटरेस्टिंग। थोड़ा दिमाग लगता है बट इजीली सॉल्वेबल, इजीली स्कोरिंग। वास्ट चैप्टर बट नॉट लाइक उसके ऊपर ऐसे हार्डकोर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मेहनत तो ट्रिग्नोमेट्री में करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि वहां पे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब किसी किसी आइडेंटिटीज में। एंड इफ यू गो द रॉन्ग डायरेक्शन दैट मीन्स यू टू कैंसल आउट एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन टेक्निक associated with it, but to score, like if somebody is targeting to score, let's say 95 plus in maths, it's not a big deal. If you don't do some serious fuck ups, then it's very easy, I'm sorry for that, serious problems, then it's very easy। otherwise मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब ना बच्चे करते हैं। कौन करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक? कौन करता? ये करती है। मत कर ये सब, मत कर। तू अपने आप को एनविजन करके मैं 95 क्लब में हूं, वो कैसे सोचता है? वो बंदा कैसे सोचता है जो 95 क्लब में है? और कोई ये कोई रेस नहीं चल रही है, लेकिन एक छोटा टारगेट है, क्यों नहीं अचीव कर सकते यार? हमको किसी से कंपटीशन नहीं, अपने को वहां देखना है, अपने आप को। किसी को सी देयर आर टू थिंग्स विच यू कैन विजुअलाइज। एक तो तुम दूसरों को हरा के जीत रहे हो, दैट इज लिटिल नेगेटिव, दैट इज पॉइजनस। और एक तो तुम खुद उस जहां वहां पे तुम पहुंचना चाहते हो, यू आर नॉट कंसर्न विद अदर्स। तुम सब पूरा क्लास 95 में आ जाए तो तुम तो और खुश हो गए कि वाओ एवरीवन इज गुड, डूइंग गुड, वेरी नाइस। तो वो नेगेटिव कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन शुड बी विथ योरसेल्फ। इफ एवरीवन इज सक्सीडिंग इट इज वेल एंड गुड फॉर एवरीवन। फिर किसी को एक मार्क अपने से ज्यादा भी मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वी आर देयर, वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स। ये जरूरी है मैथ्स में, ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। और गलती यहीं पे होती है मोस्टली, जो इंस्टीट्यूट्स है, टीचर्स है, दे ट्रेन यू टू compete with others, which is negative and which will actually bring you down in the long run। because ये ना रेस कभी खत्म नहीं होगी। तुम आगे जाओगे then you will compare with your colleague, with your friend, with your co-worker कि देखो इसको तो ये ज्यादा पैकेज मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है। देन यू विल बी नेगेटिव, यू विल बी डिप्रेस्ड इनसाइड, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी। फिर तुम मेहनत करोगे ना, वो नेगेटिव हो जाएगी। डोंट डू दैट, compete with yourself। मैथ्स में तो यू कैन गो, everyone sitting over here is eligible, everyone 95 प्लस you should target। और अभी हम पेपर सॉल्विंग ये सब स्टार्ट करेंगे एंड यू विल सी कि स्लोली स्लोली हाउ यू आर इम्प्रोवाइजिंग। मुझे पता है फर्स्ट पेपर में अच्छे नहीं आते मार्क्स, 80 में से यू विल बी स्टक इन 50s और समथिंग, बिकॉज तुम्हें पता नहीं है पूरा पेपर कैसे लिखना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, शॉर्टकट्स कैसे लेने हैं, शॉर्टकट्स कहाँ पे नहीं लेने हैं। यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स बाय सॉल्विंग पेपर। तो जो लोग ऑनलाइन भी है अभी, उनको मैं बोलूँगा कि अभी आना शुरू करो, अभी घर पे मत बैठो, इट्स नॉट द टाइम। 4 to 11 बैठ जाओ सब लोग घर पे, मैं हूँ नहीं, बट 11th के बाद तो यू मस्ट कम। ठीक है गाइस, इट वाज अ गुड सेशन।